Example 3-3. Again, you have a system which is being shown to you, and this 200 kg crate is suspended using the ropes AB and AC as shown to you in the figure. Each rope can withstand a maximum force of 10 kilonewton before it breaks. अब थोड़ा सवाल चेंज हो गया, आपके पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपके पास जो मैक्सिमम टेंशन इन रोप्स AB और AC में आ सकती है दैट इज 10 किलो न्यूटन. अगर इससे ज्यादा टेंशन होती है तो द कॉर्ड्स आर गोइंग टू ब्रेक. If AB always remains horizontal, we need to determine the smallest angle to which the crate can be suspended before one of the rope breaks. के आपने वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि उससे यानी टेंशन जब उन केबल में ज्यादा होगी तो that one of these ropes is going to break. Okay, so starting with this solution and drawing the free body diagram of किसकी free body diagram बनाएंगे? सर पहले डी की बनवा लेते हैं सर. चलें, डी की तो सिंपल है. हम डी की अगर बनाते भी हैं तो वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, टी ए डी ऊपर एक्ट कर रही होगी. सो नेक्स्ट हमें फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए किसकी अपने सोल्यूशन के लिए? ए की सर. तो ए की चाहिए. सो वी नीड टू आइसोलेट दिस पॉइंट ए फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सो वंस यू आर गोइंग टू आइसोलेट इट, you are going to get a value of tension which is TAB acting along this rope AB. The second type of force which would be acting on this point A is going to be this tension which is TAC, and the angle at which it would be acting would be this angle theta. The third force जो कि पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही होगी दैट इज गोइंग टू बी दिस टेंशन जिसको हम TAD के नाम से कर रहे हैं. एंड सिंस जब हम डी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे या क्रेट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वेट ऑफ द क्रेट. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ गई है एक को? कोई क्वेश्चन आपके फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से? Okay, so once the free body diagram is clear, then applying the conditions of equilibrium, first of all, summation fx equal to 0, that is there is no unbalanced force acting along the x-axis. The forces which are acting along the x-axis or at point A are going to be this force which is TAB acting towards the positive x-axis, and the other force is going to be TAC cos minus TAC cos of theta. That should be equal to 1, isn't it? So let me call it as equation number 1, TAB minus TAC cos of theta. Now applying the second condition of equilibrium, which is summation Fy to be equal to 0. The forces which are acting along y-axis are shown to you as TAC with a sine component and positive, क्योंकि second quadrant आता है, so TAC sin theta is going to have a positive value, minus WD should be equal to 0. So this would be my equation number 2. Okay, what are the unknowns? How many unknowns are there in this equation? 2. Are you sure? Sir 3 नहीं है, theta भी 3 है सर. So we have 3 unknowns. The tensions, 2 values of tensions in cable AB and AC, and the angle theta. So we have overall अगर हम देखें तो हमारे पास 3 unknown आते हैं. So how to solve this system? Can you read this second line? Each rope can withstand a maximum force. TAB को 10 किलोन्यूटन रख देंगे. अच्छा चलें, अब चूंकि क्वेश्चन कहता है each rope can withstand a maximum force of 10 kilonewton before it breaks. तो ये हम 10 किलोन्यूटन TAB को रखेंगे या TAC को रखेंगे? सर TAB को रखेंगे. TAB को रखेंगे सर. Why? सर वो इसलिए क्योंकि तब वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तब भी थीटा मिनिमम होगा और उसने बोला हुआ है कि स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए. अच्छा. तो इसलिए एनी अदर स्टूडेंट जो कि जवाब देना चाहे और या इसे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे? तो TAB पे होगा क्योंकि सर देखें अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे बी वाले साइड पे तो रोप जो है वो ब्रेक हो सकता है. आप दोनों ख्याल में TAB होना चाहिए.
कोई स्टूडेंट जो सर TAC को 10 रखना चाहे और उसकी लॉजिक डिफाइन करना चाहे। सर TAC होगा सर, पर लॉजिक अब मैं सर लॉजिक क्यों यही होगी अब। देखें चलें एक सेकंड, बाकी तमाम स्टूडेंट भी सुन लें। एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह भी आपने से एक ने कहा कि हम TAB को 10 रख लें। अगर हम TAB को 10 रखते हैं और उससे रेलिवेंट हम TAC की वैल्यू निकाल लें, प्रोबेबली अगर वो 10 से ज़्यादा आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सपोजिशन गलत है, और फिर हम TAC को 10 रख के TAB की वैल्यू निकाल लें। लेकिन इन सब चीज़ों के बजाय अगर आप लॉजिकली सोचें, थोड़ा सा मुझे आप में से कोई एक स्टूडेंट जवाब दे। मैं एक इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ f of x is equal to f cos theta। अब इसका इस फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली मैं एक xy कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करूं विच इज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक अदद फोर्स है जो कि ये फोर्स F है, ये थीटा बना रही है x एक्सिस से। सो हमने पढ़ा हुआ है कि f of x is f cos theta, isn't it? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, Yes, sir. इसमें fx की वैल्यू बड़ी होगी कि f की वैल्यू बड़ी होगी? सर f की वैल्यू बड़ी होगी। f की वैल्यू बड़ी होगी। कैसे आपने जज किया? सर f हाइपोटेन्यूस है ना, बेसिकली fx जो है वो f का कंपोनेंट है, cos से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली f cos theta is going to be smaller than f, isn't it? जी सर। अच्छा, अब जरा इस इक्वेशन 1 को देखें। दिस इक्वेशन 1 सेज TAB is equal to TAC cos of theta, ऐसे ही है? जी सर। यस अब सर। ये बताएं TAB की वैल्यू बड़ी होगी या TAC की वैल्यू बड़ी होगी? सर TAC की। TAC की वैल्यू बड़ी होगी। Why? Because TAB is a cos component of TAC, यानी हमेशा TAC cos theta is going to be smaller than TAC, isn't it? सर पर एक कंडीशन में तो नहीं होगा ना सर, जब 0 होगा एंगल। देखें एंगल यहाँ 0 है। यस सर, ओके ओके सर। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे कि आपके पास इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू आती है हमेशा TAC की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी TAB से। इट मींस के अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू पुट TAC टू बी इक्वल टू द मैक्सिमम फोर्स जो कि 10 किलो न्यूटन के बराबर है, सो इससे मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई एम गोइंग टू गेट the value of theta to be equal to 11.31 degrees, and accordingly the value of TAB from equation number 1 would comes out to be 9.81 kilonewton, which is again smaller than the maximum allowable stress or maximum allowable force of 10 kilonewton. So this answer is correct. आपने किया क्या कि you have assumed the maximum force of 10 kilonewton occurs in cable AC. Accordingly आपको थीटा की वैल्यू भी मिल गई और आपको TAB की वैल्यू भी मिल गई जो कि आपके आंसर्स को सेटिस्फाई कर रही है। अगर सपोज आप गलत सपोजिशन कर लेते, फॉर एग्जांपल आप कहते कि मैं AC नहीं, मैं TAB की वैल्यू जो है वो ले लेता हूं 10 किलो न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब इससे आपको थीटा की वैल्यू क्या मिलनी थी? फाइंड कर सकते हैं थीटा? नो सर। क्यों नहीं फाइंड कर सकते यार, ये क्या मुश्किल बात है? जरा थोड़ा सा सोचिए ना, अगर आपको अब थीटा फाइंड करना पड़ता तो क्या होता और कैसे फाइंड कर सकते हैं जी? एनी आइडिया? अगर आप कहते ए भी आपको 10 किलो न्यूटन लेना है तो फिर कैसे सोल्यूशन किया जाता? सर रोप टूट जाता सर अगर 10 न्यूटन होता तो। कैसे जज किया आपने? क्या जी सर? मैं कह रहा हूँ कैसे जज किया कि TAB जब 10 किलो न्यूटन होता तो रोप टूट जाता? क्योंकि सर उसको नीचे वाला वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको भी साथ वो करना है ना, इक्वलाइज करना है, तो टोटल जो है मतलब जो टोटल रिजल्टेंट बनेगा वो 10 से बड़ा होगा। चलिए TAC, अगर मैं TAB 10 लेता हूं तो TAC की वैल्यू क्या आएगी इन इक्वेशंस के हिसाब से? क्या आप जज कर सकते हैं? जब तक थीटा नहीं पता होगा तो वो हम नहीं जज कर सकेंगे। अच्छा, तो थीटा कैसे पता सर करेंगे? जज कर सकते हैं मेरे ख्याल थीटा से। अगर हमें TAB दिया होगा तो थीटा भी हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि सर वो इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं जो हमें अननोन है। मैं आपसे एग्री नहीं करता, थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। सर एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर देंगे। TAB = TAC
इस TAC cos थीटा लगेगा सर। देखें आपके पास TAB इक्वल टू TAC cos थीटा। इक्वेशन 3 क्या कहती है कि आपके पास TAC cos थीटा जो है वो 10 किलो न्यूटन के बराबर है, ऐसे ही है। आपने TAB 10 कहा ना, तो इक्वेशन 3 कहती है TAC cos थीटा आपके पास 10 हो जाएगा, ऐसे ही है। यस सर, यस सर। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है? TAC sin थीटा आपके पास किसके बराबर है? 1962 के बराबर, जो वेट है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें, sin थीटा ओवर cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1962 ओवर 10। तो थीटा क्या आ जाएगा? sin ओवर cos क्या होता है? यस सर, tan थीटा। tan थीटा। तो tan इनवर्स आप ले लें 1962 डिवाइडेड बाय 10। 1962 नहीं, 1.962 रादर। आप किलो न्यूटन में बात कर रहे हैं ना, वो 10 किलो न्यूटन है, सो 1.962 डिवाइडेड बाय 10। सो आपके पास थीटा क्या आ गया? 11.1। ठीक है, अब अगर थीटा 11.1 आया है तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से मैं TAC की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो क्या वैल्यू आएगी? सपोज 10 से निकालता हूं, सो 10 डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्या वैल्यू आई है? 10.19 आ गई, ऐसा ही है TAC की वैल्यू। काइंडली कोई जवाब दे दें, TAC की वैल्यू 10.19 ही आई ना? So is it acceptable? ये वाली वैल्यू? नो सर, Because it is exceeding 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये तुक्के वाला था कि मैं तुक्का चलाता कि पहले AC को 10 किलो न्यूटन रख लेता, फिर AB को 10 किलो न्यूटन रख लेता, और उससे मुझे जज हो जाता कि ये सेकंड सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इट मींस कि ये वाला सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है। रादर मैं हिट एंड ट्रायल पे चलूं, मैंने लॉजिकली सोचा कि एज पर इक्वेशन नंबर 3 TAC is going to be greater than TAB because TAB is TAC cos of theta, यानी उसका एक कंपोनेंट की तरह आ रहा है। तो हमेशा जब कंपोनेंट की वैल्यू है वो ओरिजिनल फोर्स से कम होती है। Therefore I am going to assume the larger force जो कि TAC है उसको 10 किलो न्यूटन ले लूं, तो ऑटोमेटिकली TAB की वैल्यू मुझे जो है वो कम मिलेगी 10 से, and the system is going to be satisfied. Is this solution now clear to all of you? यस सर। जी सर। Yes, sir. कोई डाउट, कोई क्यूरी रिगार्डिंग दिस सोल्यूशन? कोई पॉइंट समझ ना आया आप अभी पूछ सकते हैं, अगर समझ आ गया तो हम आगे मूव करते हैं। सर ये थीटा की दो वैल्यूज क्यों आई हुई हैं, मतलब कि देखें आपकी थीटा की इसलिए दो वैल्यूज आई हैं कि एक दफा आपने TAC को मैक्सिमम लिया है तो आपको थीटा की 11.31 मिली है, आपने जज किया उससे TAB की वैल्यू 9.81 आ रही थी। दूसरे केस में आपने TAB की वैल्यू 10 किलो न्यूटन ली जिससे आपको थीटा 11.1 मिला और TAC जो है वो एक्सीड कर रहा था। सो दिस सोल्यूशन इज इनकरेक्ट, और आपका जो करेक्ट सोल्यूशन है वो ये है जिसमें AC जो फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। सो थीटा इक्वल टू 11.31 इज द करेक्ट वैल्यू।